गया 4th चैप्टर स्वामी विवेकानंद। इसमें पिक्चर्स दी गई हैं, ये आपने बतानी है कि ये किसकी पिक्चर्स हैं। तो पहली दी गई है महात्मा गांधी की पिक्चर। इन्होंने भारत को आज़ाद करवाया था 1947 में। फिर है भगत सिंह, ये एक महान क्रांतिकारी थे। फिर है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा था। यह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। और ये है स्वामी विवेकानंद। फिर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये एक महान राष्ट्रवादी थे। मतलब जैसे देश में, इंडिया में बहुत सारे जातियों के, धर्मों के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, परंपराएं हैं, बट इन्होंने कहा कि सब एक हैं, वो होता है राष्ट्रवाद। ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। आपका लेसन शुरू होता है स्वामी विवेकानंद के बारे में। Vivekananda, the great son of India, was born on 12th January 1863 to Vishwanath Datta and Bhuvneshwari Devi in Shimla, a part of the big city Kolkata. Had a divine glow on his face at the time of his birth. He was named Vireshwara, but his name was too long for children to say it with ease, so everybody started calling him Narendra. His father was kind and helpful to the poor and needy. His mother was a deeply religious lady. Apart from duties, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. The boy Narendra used to sit beside his mother listening to such stories. मतलब विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, शिमला में हुआ। उनकी मदर का नाम भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। शुरू से विवेकानंद जी के चेहरे पे एक दैवीय चमक थी। उनका नाम वीरेश्वर रखा गया, पर बच्चे इनका नाम नहीं बोल पाते थे, इसलिए इन्हें सब नरेंद्र कहने लगे। इनके पिता गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। इनकी माता बहुत धार्मिक थी, वह रामायण और महाभारत पढ़ती थी। नरेंद्र भी ये कहानियाँ सुनते थे। कौन सी कहानियाँ? रामायण और महाभारत की। Narendra's childhood was remarkable for the incident that revealed his courage, presence of mind and intelligence. He was very naughty, lively and playful. He loves birds and animals. The qualities of leadership in him were visible since his childhood. His favorite game was king and the court. He would always play the role of a king, and his playmates would act as ministers and courtiers. He and his friend often practiced meditation. While meditating, Narendra could sit in the same posture for a long time and he would look like a little Buddha. One day, when they were meditating,
A black snake came near them. All the children shouted and ran away, but Narendra did not even move from his place. He kept his eyes closed. The snake crawled on his floor and left without causing any harm. तो इसका मतलब है नरेंद्र जो है वो शुरू से साहसी थे, बुद्धिमान थे और बहुत शरारती भी थे. उनका पशु पक्षियों से भी बहुत लगाव था. लीडरशिप, नेतृत्व का गुण उनमें बचपन से ही था. राजा और दरबार उनका मनपसंद खेल था. वे अपने साथियों के साथ ध्यान लगाते थे. ध्यान में नरेंद्र बहुत देर तक बैठे रहते थे. वे छोटे बुद्ध की तरह दिखाई देते थे. एक बार नरेंद्र मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके पास एक सांप आ गया, पर नरेंद्र हिले तक नहीं और सांप ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा. नरेंद्र एट स्कूल. Narendra was good at studies as well as games. He listened to the teacher carefully. He could recall whatever was taught, taught by the teacher. He never used to forget anything, even if he listened to it for the first time. Once, Narendra was punished at school. The geography teacher asked him a question which he answered correctly, but the teacher thought Narendra was wrong and punished him. The boy protested, "I have not committed any error. I'm sure what I say is right." This made the teacher not only furious, but also made him slap Narendra. When narrated everything to his mother, his mother consoled him and said, "My son, why do you care if you are right? Always follow the truth, whatever may happen." Later, when the teacher realized his mistake, he regretted. तो नरेंद्र पढ़ाई में अच्छे थे. वे अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनते थे. वे जो भी पढ़ते थे उन्हें याद रहता था. एक बार भी अगर वो पढ़ते थे तो वो भी उन्हें याद रहता था. एक बार उनको स्कूल में सज़ा मिली. उनके टीचर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा जिसका उत्तर उन्होंने ठीक दिया, पर टीचर ने मना कर दिया कि उत्तर गलत है. नरेंद्र ने कहा कि नहीं, सही उत्तर सही है. टीचर गुस्से में आ गए. उन्होंने नरेंद्र को थप्पड़ लगा दिया. नरेंद्र ने आकर सारी बात अपनी मदर को बताई. ठीक है, तो उनकी मदर ने कहा, अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो. बाद में टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खेद किया. Narendra, a brave boy. Narendra was a brave boy. One day, while Narendra and his friends were playing in the garden, they heard a voice calling, "Run, run, ghost, ghost." There was a ghost in the tree. Ghost. Hearing these words, all boys ran away in fear. But the boy Narendra stood fearless and asked the gardener, "Where the ghost? I don't see the ghost in the tree." नरेंद्र जो है वो एक बहादुर बच्चा था. एक दिन नरेंद्र अपने साथियों के साथ खेल रहे थे तो एक आवाज़ आई, "भागो भागो, पेड़ पर भूत है." सब भाग गए, पर नरेंद्र वही खड़े थे. उन्होंने माली से कहा कि मुझे तो कोई भूत नहीं दिख रहा, कहाँ है भूत. Narendra becomes Swami Vivekananda. Narendra's habit of fearlessness, love for mankind and
concentration made him one of the greatest spiritual leaders of mankind, and thereafter he began to be known as Swami Vivekananda. He was deeply inspired by the teachings of Gita. निडरता के गुण, मानवता के लिए प्रेम, गहरा चिंतन, इन सब बातों ने, इन सब गुणों ने नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बना दिया। उनकी प्रेरणा का स्रोत गीता थी, गीता ग्रंथ। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ, मैं समराइज कर देती हूँ। ये वर्ड्स मीनिंग्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग करते हैं। डिवाइन मतलब दैविक, ग्लो मतलब चमक, इपिक महाकाव्य, रिविलेड उजागर किया, मेडिटेशन ध्यान लगाना, पॉस्चर शारीरिक स्थिति, फ्यूरियस बहुत अधिक गुस्से में, कंसोल सांत्वना देना, रेग्रेट पछताना। तो एक बार और बता देती हूँ मैं। तो विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को शिमला में हुआ था। उनकी माता का नाम उनकी भुवनेश्वरी देवी था और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। शुरू से ही विवेकानंद जी के चेहरे पे एक दैवीय चमक थी। उनका नाम क्या रखा गया? उनका नाम रखा गया वीरेश्वर। बट उनका नाम इतना मुश्किल था कि बच्चे नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने उनका एक नया नाम रख दिया नरेंद्र। उनके पिताजी जो हैं वो बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति थे। वो गरीबों की सहायता और ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। उनकी माता जी बहुत धार्मिक थी, वो रामायण महाभारत पढ़ती थी और नरेंद्र भी ये कहानियाँ सुनते थे महाभारत रामायण की। नरेंद्र शुरू से ही बहुत साहसी थे। नरेंद्र चाइल्डहुड, वो बुद्धिमान भी थे बचपन से ही और शरारती भी थे। और पशु पक्षी जो हैं उनके साथ भी उनका गहरा लगाव था। लीडरशिप का गुण, नेतृत्व का गुण उनमें शुरू से ही था, बचपन से। उनका फेवरेट गेम जो है वो किंग एंड द कोर्ट था। ठीक है, वो अपने साथियों के साथ ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। तो वो बहुत देर तक मेडिटेशन में बैठे रहते थे। वो जब मेडिटेशन करते थे तो वो एक छोटे बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। एक बार जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके पास एक सांप आया और सांप जो है, पर वो हिले तक नहीं मेडिटेशन से, वो ऐसे ही बैठे रहे और सांप ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही चले गया सांप। नरेंद्र एट स्कूल, तो नरेंद्र जो हैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे और अपने टीचर्स की बात को अच्छे से, और जो भी एक बार पढ़ते थे वो उन्हें याद हो जाता था। तो एक बार उनको सज़ा भी मिली है। एक टीचर ने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने आंसर सही दिया, बट जो है टीचर को लगा कि गलत है, इसलिए उन्होंने उन्हें पनिशमेंट दी। और नरेंद्र ने घर आके अपनी मदर को ये बात बताई, तो उनकी मदर ने कहा कि तुम क्यों डर रहे हो, अगर तुम सही हो तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीचर को फिर पता चला कि हाँ नरेंद्र ठीक बोल रहा था, आंसर सही था, तो उन्हें खेद हुआ। नरेंद्र एक बहादुर बच्चा था और वह अपने साथियों के साथ एक बार खेल रहा था, तो बगीचे में वो खेल रहा था, तो एक आवाज़ आई, भागो भागो यहाँ से, कि यहाँ पे पेड़ पे भूत है। तो सभी भाग गए पर नरेंद्र खड़े रहे। वो कहते कहाँ है भूत, मुझे तो कोई भूत नहीं दिख रहा।
नरेंद्र का स्वामी विवेकानंद बनना। नरेंद्र में जो है शुरू से निडरता के गुण, मानवता के लिए प्रेम और गहन चिंतन जो है उनके अंदर शुरू से ही था। इन सब गुणों ने उन्हें नरेंद्र से क्या बना दिया, स्वामी विवेकानंद बना दिया। और उनकी प्रेरणा का स्रोत क्या थी, गीता थी। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।